A very good morning, 8th standard. So let's start today's new chapter, that is chapter 5, coal and petroleum. So students, as you know, we have completed our two chapter in chemistry, that is chapter 3, synthetic fiber and plastic, chapter 4, metals and non-metal. So today we are going to start a new chapter, that is coal and petroleum. So students, let's discuss first its contents, what we are going to discuss in this chapter. So students, in this chapter, we are going to learn, first of all, today we are going to do some introduction of this chapter. So in this chapter, I'm going to introduce you inexhaustible natural resources and natural and exhaustible natural resources. So students, as you know, कुछ मटेरियल्स हमारे नेचुरल से मिलते हैं और कुछ हमारे मैनमेड रिसोर्सेज होते हैं। तो आपको पता है नेचुरल में भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कुछ होते हैं इनएग्जॉस्टेबल और कुछ होते हैं एग्जॉस्टेबल। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट कोल। कोल में हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ कोल, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो जो आप देखते हो जब रोड बनती है वो ब्लैक ब्लैक शाइनी सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है। सिर्फ एक कोल कोयला ही नहीं होता, बाकी जगह कहाँ कहाँ यूज होता है हम इसमें पढ़ेंगे। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम को हम जब भी ये वर्ड सुनते हैं पेट्रोलियम, तो स्टूडेंट्स हम इसको रिलेट करते हैं पेट्रोल से, लेकिन हम देखेंगे कि हम पेट्रोलियम और आगे इसके क्या मतलब है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। और बाद में हम पढ़ेंगे इसके रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि कैसे ये पेट्रोल को हम रिफाइन करते हैं। Then we will discuss about natural gas also, fossil fuels also, and some natural resources are limited. And पढ़ेंगे कुछ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो हमें प्रकृति दे रही है वो भी हमारे अनलिमिटेड है। तो इसके बारे में इस टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। So let's today we are going to do introduction of this chapter, and we are going to learn what are inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. So students, as you know, there are some substance that some are natural and some are man-made. अब natural में हम क्या क्या include करेंगे? Forest, air, sunlight, water, हम ये सब decomposition of dead plants and animals, petroleum जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, कोल, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। And students, things which are made by men with the help of machine and technology, कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे मशीन से बने होते हैं, टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। So these are called man-made resources. It includes railways, it includes bridges, it includes dams, satellites and buildings. So अभी हमने डिस्कस किया what are natural resources and what are man-made resources. नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, एयर, वाटर, सनलाइट, पेट्रोल, कोल, ये सब हमें नेचर से मिले हैं। And things which are made by man-made with the help of the machines and technology are known as man-made resource, like railways, ये man ने हम लोगों ने बनाए हैं, bridges, dams, satellites, buildings, etc. ठीक है। So students, हम इनसे क्या सीखा? We use various material for our basic needs. हम अपनी basic needs के according बहुत सारे चीजों को use करते हैं। Some of them found in nature and some have been made by human efforts. और कुछ हमारे नेचर से मिलते हैं और कुछ हमारे ह्यूमन एफर्ट से बनाए जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि एयर, वाटर, सॉइल एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। आपको पता है जो एयर, वाटर, सॉइल क्या एक्टिविटीज क्या ह्यूमन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। You have already studied about in class 7. Is water a limitless resource? आपने class 7th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 16, वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स। क्या आपने पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में? हमने इस चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो वाटर है वो कितना प्रीशियस है, हमें वो भी लिमिटलेस है। Is the light of availability of various resources in nature, natural resource can be broadly classified into
टू काइंड। सो हमने इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेचर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू पार्ट्स। बट बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, हम पहले तो हमने यहाँ पे कॉलम बनाए हुए हैं कि क्या नेचुरल होंगे और क्या मैन मेड होंगे। तो आप इसमें नेचुरल में हम लिख सकते हैं लाइक एयर, है ना, एयर लिख सकते हैं हम, सॉरी मुझसे इसमें लिखा नहीं जाता, इसमें हम सनलाइट लिख सकते हैं, है ना। और मैन मेड में हम रेलवे लिख सकते हैं, बसेस लिख सकते हैं, बिल्डिंग्स लिख सकते हैं, है ना। ये सब हम इन चीजों में लिख सकते हैं। सॉरी ये मुझसे थोड़ा लिखा नहीं जाता है इसमें, ठीक है, तो आप समझ जाएगा। हम सनलाइट को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसमें हम ये सब इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि हमने पहले इसमें वेरियस मटेरियल यूज किए, जो हमें नेचुरल मिलते हैं और जो मैन मेड ने बनाए हैं। लेकिन नेचर से हमने नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्स हम इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक ये भी इंक्लूड कर सकते हैं हम अपने प्रीवियस टेबल में, जैसे कि रबर। हमें नेचुरल क्या है, रबर, जिससे हम मैन ने टायर्स बनाए। नेचर ने हमें क्या दिया, वुड, जिससे हमने फर्नीचर्स बनाया। नेचर ने हमें मेटल दिया, जिससे हमने स्पून्स बनाए। सैंड हमें नेचर ने दिया, जिससे हमने यूटेंसिल्स बनाए। कॉपर दिया, जिससे हमने स्टैचूज बनाए। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिव। मतलब ऐसा नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम लिमिटलेस यूज कर सकते हैं, वो लिमिटलेस है। इसमें भी हमारे ब्रॉडली क्लासिफाई किया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। सो इन सबसे हम पहले पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं। Resource which exists in unlimited quantity in nature and does not exhaust because of human activities. तो inexhaustible resource ऐसे हैं जो हमारे नेचर्स में अनलिमिटेड है, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकते ह्यूमन एक्टिविटीज के। सनलाइट, एयर, वाटर। लेकिन स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे मैम ने तो अभी बताया कि वाटर तो लिमिटलेस नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे वाटर का मतलब ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये ओशियन का वाटर है जो हमें नेचर ने दिया है, ठीक है। एग्जॉस्टिबल वेरियस रिसोर्स व्हिच आर लिमिटेड इन नेचर एंड आर लाइकली टू एग्जॉस्ट इन नियर फ्यूचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। और ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे प्रकृति में नेचर में लिमिटेड है और वो धीरे धीरे हमारे फ्यूचर के लिए एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, हम इसको अपने यूजेस के लिए हम इनको काट रहे हैं, कट कर रहे हैं हम ट्रीज को। कोल, है ना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ ऐसे हैं जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं, तो हमें इनको बचाना है। तो पहले हम एक्टिविटी करते हैं, इसे समझते हैं। आपको कुछ कंटेनर लेने हैं, आपको उसमें पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज कुछ भी डालने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स ले रखी है। अब आपको डिवाइड करना है स्टूडेंट्स को ग्रुप 7 या 5 में। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें मैंने कुछ चॉकलेट्स डाली थी और मैंने ग्रुप को डिवाइड किया था 5-5। मैंने क्लास को 5-5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप, ये हम स्किप कर देते हैं। अब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली करते हैं। अब हमने सपोज किया कि ये हमारी एक फर्स्ट जनरेशन है, ये हमारी सेकंड जनरेशन है, ये हमारी थर्ड जनरेशन है और ये हमारी फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, आस्क कंज्यूमर फॉर द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईच फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ग्रुप कंज्यूमर को बोला कि आप जितना हो सकता है उतनी चॉकलेट्स, इसमें से चॉकलेट्स निकाल सकते हैं। एंड सेकंड जनरेशन को भी हमने ऐसे ही बोला। एंड ask student to observe carefully availability of eatables in each groups। जब आप देखोगे थोड़ी देर बाद, जब फर्स्ट जनरेशन भी अपने लिए चॉकलेट्स निकाल लेगी, सेकंड जनरेशन भी निकाल लेगी, तो इसमें कितनी बचेगी आप देखोगे, इसमें कम होते रहेंगे, है ना, ऑब्वियसली कम होते रहेंगे। If something is left in the container, ask third generation from each group to consume it। अब जब इसमें कुछ और बचेंगे तो हमने थर्ड जनरेशन को भी इसमें से निकालने को कुछ बोल दिया। एंड फाइनली आप देखोगे आफ्टर थर्ड जनरेशन उसमें इतनी चॉकलेट्स नहीं बची होंगी कि हम सारी की सारी फोर्थ जनरेशन में बांट दें, है ना। अब देखो फर्स्ट जनरेशन को तो सबको किसी किसी को 2-2 मिली, सेकेंड जनरेशन में
फिर भी एक जने को 2 मिली, इसमें भी मिल गई, लेकिन हमारे 4th जनरेशन को नहीं मिली। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, मैंने इसको समझा था एक ऐसा रिसोर्स जो एग्जॉस्टेबल है ना। और ये थे हमारी जनरेशंस। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई उन्होंने काफी अच्छे से यूज कर लिया, सेकंड जनरेशन उन्होंने भी यूज कर लिया, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे क्वांटिटी कम होती रहेगी। तो इससे हमने क्या सीखा कि हमें उतना ही यूज करना है जितना कि हमें जरूरत है ना, हमें उतना ही लेना है जितना कि हमें चाहिए। तो ऐसे उसमें हमने ये सीखा कि जो हमारी चीज लिमिटलेस नहीं है, हमें उसको लिमिटेड तरीके से ही यूज करना है, वरना आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमने इस एक्टिविटी से क्या सीखा, assume that the eatables in the container present the total availability of exhaustible natural resource like petroleum, coal, natural gas। यही मैंने आपको बताया। और आपने देखा हर एक ग्रुप ने डिफरेंट डिफरेंट कंजप्शंस किया। तो आपने देखा आने वाली आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। क्या आपको क्या लगता है, जो पहले वाली जनरेशन थी वो काफी लालची थी, तो अर्लियर जनरेशन के कुछ ने कंसर्न किया कमिंग जनरेशन के लिए, क्या उनको ये सोचना नहीं चाहिए था कि आगे आने वाली जनरेशन हमारे लिए, हम उनके लिए क्या छोड़ रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे किस तरीके से एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और हम इनको कैसे यूज कर रहे हैं। तो हमें इनको भी तो तरीके से यूज करना है कि कैसे हम इस तरीके से इनको यूज करें कि आगे वाली जनरेशन के लिए बच सके। अब आप इस पिक्चर में देखिए कि आप ये देख सकते हैं जैसे आने वाले उसमें ऐसे ही हो सकता है नो डीजल। अगर हम इस तरीके से यूज करते रहे तो हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। So in this chapter, we will learn about some exhaustible natural resource like coal, petroleum, and natural gas. These were formed from the dead remains of living organic fossils, and these are known as fossil fuels. So student, हम इनको क्या बोलते हैं, कैसे बनते हैं? आपने देखा होगा जब कोई एनिमल, कोई बर्ड जब मर जाते हैं वो काफी टाइम तक डिकम्पोज होते रहते हैं। तो आपने इसमें मैंने एक डेफिनेशन लिखी होगी डिकम्पोजिशन में। तो इसमें आप देखेंगे ये डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल आफ्टर थाउजेंड्स ईयर्स तक ये लोग क्या डिकम्पोज होते रहते हैं। जब वो अच्छे सड़ जाते हैं तब जाके उसमें से हमारा ये डीजल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बनते हैं। और ये सारी चीजों को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे आगे काम आते हैं। बट दीज आर नॉट लिमिटलेस, दीज आर लिमिट। तो वी हैव टू यूज इन लिमिट, हमें इनको लिमिट में ही इनको यूज करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। So we will continue in this chapter in next class and we will study about coal. Thank you.